Let me go across to Atishi, former Chief Minister of Delhi, leader of opposition in the Delhi Vidhan Sabha. We also are being joined by Kamaljeet Sehrawat, Lok Sabha MP BJP from the national capital. Thank you so much to both of you for speaking to us. Atishi, let me get your first reaction to what the Chief Minister has said and the allegation that Mr. Khurana has made on the Aam Aadmi Party. He has tweeted a picture of the attacker with Mr. Gopal Italia, who is an MLA, Aam Aadmi Party MLA in Gujarat. See, first of all, Ankit, Aam Aadmi Party and all its leaders, we unequivocally condemn the attack on the Delhi Chief Minister, Rekha Gupta ji. As soon as we heard the news of the attack, all senior Aam Aadmi Party leaders not only condemned the attack, but we also reached out to the Chief Minister to inquire about her well-being. In democracy, there is space for differences, there is space for dissent, there is freedom of speech, but there is absolutely no space for any violence. And therefore, there is no question at all of not condemning this attack, number one. But this attack does raise a few questions. First of all, it raises some questions about the issues of safety and security in Delhi. If the Delhi police cannot protect the chief minister of the city, and as you rightly said, this is not the first time that a chief minister in Delhi has been attacked. It is precisely because of the laxity of the Delhi police on previous instances. You yourself mentioned 3 or 4 instances when Arvind Kejriwal was the sitting chief minister of Delhi, he was attacked. But that attack was not taken seriously. The people who were culprits were not given stringent and exemplary punishment. And that is the reason why someone has the courage to attack a sitting chief minister. And if the Delhi police cannot protect a sitting chief minister of Delhi, right, then how are they going to protect the ordinary citizens? There is no doubt, you're right, there is no doubt that it's a big question mark. As far as that photo is concerned, I don't even know whether that... It's a big question mark on how the Delhi police functions, and because as I said, it's concerned, not one chief minister, successive chief minister, Arvind Kejriwal in 2 terms, and then the newly minted chief minister of Delhi has been attacked, and it raises a question on the Delhi police is working. But let me ask you, Atishi, point blank, because this is what the BJP is saying. They are accusing you of political conspiracy. They have put out a picture. Can we have that tweet up, please, of the attacker with, Gopal Italia? Would you like to react to what the BJP's allegation is? First of all, Ankit, I have also just seen this photograph after it came in your news bulletin. Frankly, it could even be AI generated, because these days photographs cannot be trusted. I have just had a word with our MLA Gopal Italia. He does not know this individual. And even if this individual has any distant association with Aam Aadmi Party, knows any Aam Aadmi Party MLAs, still the attack is condemnable and the strongest possible action must be taken against this individual. कमलजीत जी, आप लोग क्योंकि अभी मैंने ये आतिशी ठीक कह रही हैं, ये पिक्चर बिल्कुल अभी आई है, जब हमने शो शुरू करा तभी ये पिक्चर आई और हमने इसको दिखाया भी है। तो उनका कहना ये है कि देखिए, अगर ये किसी भी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी के साथ है भी, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से पहले कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाना शायद थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि हमने कई बार पहले भी देखा है, नेताओं के साथ फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। अंकित जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं आतिशी जी की इस बात से भी सहमत हूं कि उनकी पार्टी इस बात को कंडेम कर रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल कहीं पे एसोसिएशन रखता हो या ना रखता हो, वो इस बात को, इस घटना को नाजायज गलत ही ठहराएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है, मैंने अभी आपका जब से टीवी ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करते वक्त ये कहना चाहूंगी कि जन सुनवाई में या जो पहले सीएम के साथ घटना हुई है, इसमें हम लोग, क्योंकि नेता जनता द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हो या आपके मुख्यमंत्री हो, हम सुरक्षा के घेरे को शायद खुद भी थोड़ा सा अवॉइड करते, क्योंकि हमें लगता है जनता का हम पे विश्वास होना चाहिए। तो आज भी जब ये बात हुई है, तो रेखा जी क्योंकि लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, फील्ड में भी खुद जाती हैं, आज भी जन सुनवाई वो पहली बार नहीं कर रही थी। वो जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से उनके घर पर और ऑफिसर पर हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं, और वो खुद सिक्योरिटी को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखती है कि लोगों से मेरी सीधी बात हो।
तो ये जो आज घटना हुई, ये अचानक एक ऐसी घटना थी जिसने आगे शायद हम लोगों को अलर्ट किया हो, लेकिन आज तक हम लोग जनता के बीच में जब जाते हैं तो यही सोचते हैं कि सिक्योरिटी थोड़ा दूर रहनी चाहिए। जी, पर कमलजीत जी, आतिशी मैं ने एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक होता था तब आम आदमी पार्टी कहती थी देखिए ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इस वजह से मुख्यमंत्री को पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन अब तो बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, सुरक्षा दिल्ली पुलिस की है, तो सवाल तो सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस पर उठता है। होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके के उस समय आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती थी वो बिल्कुल सिद्ध होते दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए दिल्ली पुलिस अगर मुख्यमंत्री को नहीं सुरक्षित कर पा रहे तो दिल्ली को कैसे बचाएंगे? मैंने अपनी बात में शुरू में ही रखा कि जब जन सुनवाई के दौरान होते हैं, हम जनता के बहुत नजदीक होते हैं। यहाँ पर मैंने अभी जो भी रिपोर्ट आएगी वो सामने आएगी कि उस व्यक्ति ने कैसे एंट्री करी, कैसे हुआ, क्योंकि जन सुनवाई में हर व्यक्ति को 1 to 1 बात करना होता है। लेकिन मैं आतिशी जी की बात का सम्मान रखते हुए, उन्होंने कहा कि ये घटना किसी के साथ हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपके चैनल पर मैंने अभी देखा कि इनकी पार्टी के एक नेता अनिल झा जी जो बोल रहे थे, मुझे लगता है आतिशी जी, पार्टी को सीधा उनसे बात करनी चाहिए। जिस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत गलत है। इस समय पे एक हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में रेखा जी हैं, सबके लिए हैं। जी, आपने पार्टी की तरफ से कंडम किया, मैं आपकी बात का स्वागत करती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि डेफिनेटली कोई नेता नहीं चाहेगा, क्योंकि हम सब एक ही फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। राइट, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन काम करने का तरीका कहीं ना कहीं समान है। बिल्कुल। मैं तो आतिशी से इस पे एक अभी रिस्पॉन्स जो ले लेता हूं। आपके जो आतिशी, नेता आपने ने जो कहा, आपने जो बात उठाई है, आतिशी से इस पे एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। आतिशी जी, ही इज एमएलए ऑफ योर पार्टी, and if when he comes and says, you know, it's almost seems, for me it seems deja vu, because I've been covering Delhi Aam Aadmi Party and the BJP for a very, very long time. When Arvind Kejriwal used to be attacked, BJP used to call it drama. Now your MLA comes out and calls it a drama. That's at least something that can't be condoned, Atishi. No, absolutely not. And I do not condone the statement of our MLA, Mr. Anil Jha. It is his personal statement. It is not the statement of the party. The party does not stand by it. You would see that as soon as the news came of Rekha Gupta ji, the attack on Rekha Gupta ji, the Chief Minister of Delhi, all senior leaders of Aam Aadmi Party outrightly condemned it. Not just that, as the leader of opposition, I reached out to one of the senior ministers in the cabinet and I spoke to him on the phone to inquire about the well-being of the Chief Minister and to convey our concern regarding her state of health. So there is absolutely, we do not stand behind the statement by the Aam Aadmi Party MLA. But since you have mentioned, Ankit, I do think that it would be a good moment for BJP also to introspect. Today a minister in the cabinet, earlier a BJP leader and an MP, Mr. Pravesh Sahib Singh Verma, has made extremely distasteful statements at the time when Arvind Kejriwal ji was attacked. Manoj Tiwari ji has made extremely distasteful statements. Virender Sachdeva ji. So I think that this is really a time I think the BJP should also introspect. Okay. Because I agree with Kamalji ji, it is not in anybody's interest. Atishi, can I political just leader should be arrested. Can I just request you to hold on to that thought, because what you are saying is something that I also want to take up. I just want to very quickly, can we just come on the full screen at this moment? Some of the reactions when can we have the ladies also on our screen, please? And let's just play those tweets. This is what Atishi is referring to, in fact, and that, you know, when Arvind Kejriwal was attacked, there were some very questionable reactions that came out from some leaders of the Bharatiya Janata Party who are at this moment running the government of Delhi as well. They are ministers. Can we have them on the screen, please? Those tweets. Whether it was Mr. Pravesh Verma or it was Kapil Mishra, many of them at that point of time had in fact made some remarks, and those remarks at that point of time were almost mocking Arvind Kejriwal when he was attacked like this one. In fact, this is of the Chief Minister Rekha Gupta. This is in 2019. अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं के विधायकों द्वारा पिटाई की खबरों से मैं दुखी हूं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं, और रेखा गुप्ता जी ने उस पर ट्वीट करा है कि चुप क्यों हैं, जवाब दो या बताओ कि कौन से अस्पताल में भर्ती हो. This is also
Kapil Mishra in fact putting out a tweet. But कमलजीत जी, जैसे आप अभी बोल रही थी कि किसी भी पब्लिक सर्विस में जो लोग होते हैं, परवेश साहिब सिंह वर्मा के अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद पर तो हमला नहीं कराया अरविंद केजरीवाल ने। जो आम आदमी पार्टी के विधायक अभी कह रहे हैं ये पुराने ट्वीट हैं आपके पार्टी के ही सहयोगियों के, जो इसी तरह की भाषा में बात कर रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ था। आपको लगता है कि कम से कम बीजेपी को भी इस वक्त ये बात सोचनी होगी कि ये इस तरह की बातों को ना किया जाए? अंकित जी, अभी जो अनिल झा जी ने बोला, अगर वो इतनी बात भी बोलते कि खुद पर हमला कराया है, वो भी एक सीमा तक राजनीति मानी जा सकती थी। लेकिन उसके आगे बढ़कर जो उन्होंने कहा है, वो ऐसा करती थी, वो वैसा करती थी, ये रेखा गुप्ता जी के ऊपर एक दूसरा हमला है जो अनिल झा जी ने, आम आदमी पार्टी के जो इस समय विधायक है, उन्होंने किया। अगर वो इतना भी कहते कि हो सकता है इन्होंने खुद कराया होगा, मैनिपुलेशन की होगी, कहाँ बढ़ती हो, इस बात तक भी एक सीमा थी। लेकिन आज अनिल झा जी ने रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम के ऊपर जो बातें कही हैं, वो इस हद को पार करके कही हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं फिर से कह रही हूं कि हम जब पब्लिक के अंदर होते हैं, हम पब्लिक से नजदीक जाने की कोशिश नेता की होती है और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। हम जनता से कैसे दूर हो सकते हैं? लेकिन इस तरह के जो सिरफिरे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक रिश्ते के अंदर खटास लाने का काम कर देते हैं और कहीं ना कहीं जनता से दूरी कमलजीत जी, चाहे परवेश जी हो, कपिल मिश्रा जी हो, चाहे अनिल झा जी हो, मुख्यमंत्री पर एक संवैधानिक पोस्ट होती है, उसके ऊपर अगर कोई भी हमला करता है तो आपको लगता है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से, उनको बचना चाहिए इस तरह की उस पर राजनीति करने का? देखिए, आप राजनीति को राजनीति के लेवल पे रखे तो अच्छा है। अनिल झा जी ने जो आज हिस्ट्री सामने रखी है, वो पर्सनल अटैक में जा रही है। अगर वो ऐसा नहीं कहते, अपने शब्दों को सीमित रखते, वो सवाल पूछ सकते थे रेखा गुप्ता जी से, कोई दिक्कत मुझे उसमें नहीं लगती। क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पर चीजें चलाई हैं, उसमें काफी जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शायद वो भी नहीं करना चाहिए था। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका है। आतिशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमारा अनिल झा जी से कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल कहा। तो हर व्यक्ति को किसी भी बात में संवेदना रखने का अपना एक तरीका हो सकता है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अनिल झा जी अगर आज इतनी बात तक भी रुक जाते कि कहाँ बढ़ती हो, क्यों कराया, अपने ऊपर करा लिया, क्या दिखाना चाह रहा, वो भी एक बात थी। मुझे लगता है कि शायद अनिल झा जी को भी इस तरह की बात ये भी नहीं कहना चाहिए था, हमला करा लिया, क्यों करा लिया, क्योंकि इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन होती है। और ना ही कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा जी को उस वक्त ये बातें कहनी चाहिए थी। कोई भी हो, इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आतिशी के पास आखिरी सवाल के लिए जाऊंगा। जी अंकित, मैं बस अंकित, मैं बस एक बात कहना चाहूंगी। मुझे इस बात का थोड़ा दुख है कि मैं तो बिल्कुल आउटराइट अनिल झा जी की स्टेटमेंट को गलत बता रही हूँ। मैंने कहा उन्होंने गलत कहा और उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कमलजीत सहरावत जी, जिनकी मैं बहुत पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने उनके मुंह से ये बात नहीं सुनी कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने अरविंद केजरीवाल जी पर टिप्पणी करके गलत किया। कमलजीत सहरावत जी ने ये नहीं कहा कि कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल जी पर टिप्पणी करके गलत किया। कमलजीत जी ने ये नहीं कहा कि रेखा गुप्ता जी ने तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर टिप्पणी करके गलत किया। ये बहुत दुख की बात है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर हमला होने के बाद भी इतना इंट्रोस्पेक्शन भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार नहीं है कि उनके नेताओं ने भी जब ऐसी टिप्पणियां करी तब वो गलत थी। चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता ऐसी टिप्पणी करे, ऐसी राजनीति करे, गलत है। कमलजीत जी, टू रिस्पॉन्ड टू दैट, मैम, आतिशी ने बोला कि आप अभी भी उनको कम से कम कंडेम, आज तो हमला मुख्यमंत्री दिल्ली पर हुआ है, आपकी पार्टी से हैं, ये इस तरह की भाषा, इस तरह की राजनीति को बिल्कुल नकार देना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अंकित जी, मैंने अपनी बात में सबसे पहले यही बोला कि हर आदमी के व्यक्ति के विचार है। मुझे लगता है कि ये सब गलत है, लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक बेसिक अंतर भी है। बेसिक अंतर यह है कि जो पहले 3 घटना हुई वो दिल्ली से संबंधित व्यक्ति थे, उनकी कोई पीड़ा हो सकती है। आज का व्यक्ति तो अचानक दिल्ली को संबंधित नहीं है, अचानक आता है, अचानक कितना उसका, अब ये भी समझना होगा। अभी तो जब पुलिस, हम ये एल्बो रूम दे रहे हैं क्या
कि अगर आप बाहर के अटैकर हैं तो और दिल्ली के हैं तो फिर जायज, हम कम से कम जायज तो हमला नहीं ठहरा सकते मैं ये मुख्यमंत्री नहीं जी कह पे। रही, नहीं अंकित जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा हर व्यक्ति के अपने विचार है बात रखने के, लेकिन मैंने एक बेसिक अपनी बात रखी है ठीक है, कि इन ओके। दोनों घटनाओं में एक बेसिक अंतर भी है जिसको भी हमें समझना पड़ेगा। ओके, ये अभी भी completely out of अंकित time. जी, आतिशी, अभी भी आतिशी, भारतीय last 20 जनता पार्टी seconds. नहीं कह रही है। भारतीय जनता पार्टी आज आतिशी भी जी, अभी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीनों कहने बार को चुनाव तैयार में नहीं है हमला कि हुआ। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की टिप्पणी गलत थी, कपिल मिश्रा की टिप्पणी गलत थी। मैं तो कह रही हूं अनिल झा की टिप्पणी गलत है, किसी को ऐसी राजनीति नहीं करनी आतिशी जी, चाहिए। उन्होंने लेकिन हद आज पार भी करके बोला भारतीय है। जनता पार्टी अपनी आतिशी जी, ओछी वो मैंने राजनीति आपको पहले और कहा, ओछी अभी की बात टिप्पणियों को करते हैं। डिफेंड कर रही है, ये गलत बात है। देखिए, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं ओके। कर रही हूँ। आप बोलिए ना, प्रवेश जी ने भी गलत बोला, आप बोलिए कपिल मिश्रा ने गलत बोला, आप बोलिए मनोज तिवारी जी ने गलत बोला। हद पार करके गलत बात है। की है। कमलजीत जी, ये उन्होंने गलत रेखा है। गुप्ता जी के ऊपर पर्सनल अटैक किया है। ओके, सबने ladies- हद पार करी, Alright. सबने हद पार करी, हमने बोला Okay, ladies, आजादी let, पार्टी वाली okay, I am गलत है, completely out of आपने time. अभी तक नहीं बोला, Atishi, गलत है। Kamaljeet ji, can I just अनिल request झा you? जी ने जो कहा है, I'm उसके completely लिए out of time. मुझे Thank you लगता so है much दूसरी बात भी to है। both of you for joining me on this. But in the end, before I thank you, I just want to tell, and also Kamaljeet ji to you, no matter what the reason is, nothing justifies physical violence against the Chief Minister, whether the Chief Minister is from the Bharatiya Janata Party, Aam Aadmi Party, Congress, or any other political party in the country. Politics is about, fight of ideology. Your positions can differ, but no excuse can be made when the Chief Minister is attacked. And I'm hoping that Atishi would also look into the fact that a picture has come out and there should be at least an internal investigation from the Aam Aadmi Party whether this man in any way is associated to the Aam Aadmi Party as well. Ladies, thank you so much for speaking to me and putting your party's point of view, your point of view on this very important story. Thank you for joining us on the broadcast.